Good morning, student. This is a class 9 subject social science, and this is chapter first. And the topic is the French Revolution, and this is the lecture 6th. Now we will start our lecture, and today we will discuss some topic. First topic is abolition of slavery. Second, the revolution and everyday life. And last we saw some question. That question has been given in last lecture. And now first we are going to discuss the abolition of slavery. In last lecture we have learnt about Jacobin clubs, and the Jacobin club included many poor people such as shoemaker, painter, daily wages worker, etc. And they formed a assembly, and assembly name was convention. Okay, and its leader name was Maximilian Robespierre, and the Jacobin government brought many social reform in the French society. But the most revolutionary social reform of the French Jacobin government was the abolition of slavery in the French colony. स्टूडेंट जैकोबिन गवर्नमेंट ने बहुत सारे सामाजिक सुधार किए थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सुधार किया था दास प्रथा को ख़त्म करना, स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म करना. वो कैसे किया? नाउ लेट्स सी. द अनविलिंगनेस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन द कॉलोनीज इन द कैरेबियन विच वर इम्पॉर्टेंट सप्लायर्स ऑफ कॉमोडिटीज सच एज tobacco, indigo, sugar and coffee created a shortage of labor on the plantation. Thus the slave trade began in the 17th century. The most important colonies in Caribbean were as Martinique, Guadeloupe and Saint Domingo, and these three colonies were the important suppliers of such commodities such as tobacco, indigo. Because of shortage of labor on plantation, Europeans had no interest to go and work in distant countries. So the slave trade began in the 17th century, and the shortage of labor was fulfilled by a triangular slave trade between Europe, Africa and America. कैरेबियन कॉलोनी जो थी बहुत इंपॉर्टेंट कॉलोनी थी, क्योंकि वो क्या करते, सप्लाई करते थे तंबाकू के, इंडिगो के, शुगर और कॉफ़ी के. यूरोपियन कंट्री वहाँ नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनके पास लेबर्स की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज थी. लेबर्स की शॉर्टेज को कम कर लेने के लिए उन्होंने स्लेव ट्रेड स्टार्ट किया 17th सेंचुरी में. और स्लेव ट्रेड को ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 3 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट था, अफ्रीका, यूरोप एंड अमेरिका. एंड नेक्स्ट, French merchants sailed from their ports of African coast, where they bought slaves from local chieftains. Chieftains means leader या head. French merchants bought slaves from local head of Africa, and they brought the slaves via African coast to the port of Bordeaux and Nantes. फ्रेंच के जो मर्चेंट थे वो सी रूट से वो अफ्रीकन कोस्ट के पोर्ट पे जाते थे. वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पोर्ट थे वो बॉर्डे और नानते था, और जहाँ पे वो क्या है, लोकल जो लीडर था, लोकल जो हेड था, उनसे क्या है, स्लेव खरीद कर अपनी कंट्री में लेके आते थे. नेक्स्ट, ब्रांडेड एंड शेकल द स्लेव्स वर पैक्ड टाइटली इनटू शिप फॉर द 3-month long voyage across the Atlantic to the Caribbean, and the slaves were branded and shackled, and then they were tightly packed into ship for 3 months. और जो स्लेव लाए जाते थे उन पे, उनकी बॉडी पे एक मार्क लगाया जाता था. उनको क्या है, उनको टाइटली क्या जंजीरों से बांधा जाता था कि कोई स्लेव्स वहाँ से जा ना पाए. और 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा करके, यानी सी रूट की हेल्प से वो क्या करते थे, अटलांटिक से कैरिबियन कंट्री में आते थे, और वहाँ पे 3 महीने की लंबी समुद्री यात्रा करने के बाद वो वहाँ स्लेव्स को वहाँ पर लेके आते थे. एंड देयर दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर. द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोपियन मार्केट्स फॉर शुगर, कॉफ़ी एंड इंडिगो. एंड it became possible to fulfill the demand of sugar with the help of slave labor. और वहाँ स्लेव जब
स्लेव को लेके आते थे, तो स्लेव को लाने के बाद उनको प्लांटेशन ऑनर को हैंड ओवर कर दिया जाता था, और जो प्लांटेशन ऑनर उनको क्या करते थे, कंट्रोल करके रखते थे। और जो वहाँ पे जो यूरोपियन मार्केट की जो डिमांड थी शुगर, कॉफ़ी, इंडिगो की, वो क्या उसको फुलफ़िल किया गया था स्लेव लेबर की हेल्प, क्योंकि स्लेव लेबर बहुत दिन में क्या है सारा दिन काम करते थे, और उनको क्या है 18 से 20 घंटे तक काम करते थे, जिससे क्या यूरोपियन मार्केट की डिमांड को क्या किया था, फुलफ़िल किया गया था। And port cities like Bordeaux and Nantes brought their economic prosperity to the flourishing slave trade. और ये port city like Bordeaux and Nantes were the important port city because ये port city थे, उनके आसपास जो स्लेव ट्रेड बहुत बड़े लेवल पे होता है। स्लेव ट्रेड ज़्यादा होने की वजह से प्रोडक्शन ज़्यादा था, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, इसलिए बॉर्डे नॉन्ते बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गए थे। The National Assembly held long debates for about whether the rights of men should be extended to all French subjects, including those in the colonies. And in 18th century, there were little criticism of slavery in France. 18th century में क्रिटिसाइज होने लगा, उनको क्रिटिसिज्म किया गया उनका कि फ्रांस में स्लेवरी सिस्टम को ख़त्म किया जाना चाहिए। और इस चीज़ के लिए 1794 में बनी हुई नेशनल असेंबली में काफ़ी सारे इसमें क्या गए डिबेट्स किए गए कि सभी पर्सनस को, सभी मैन को राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए, एंड फॉर फ्रेंच पीपल एंड फॉर द पीपल हु लिव इन द कॉलोनीज़, चाहे वहाँ फ्रेंच कॉलोनीज़ के पर्सन हैं या स्लेव्स हैं, सभी को क्या है राइट्स प्रोवाइड किए जाने चाहिए। इसके लिए बहुत लंबी बहस नेशनल असेंबली में की जाती थी। But it did not pass any laws, fearing opposition from businessmen whose income depend on the slave trade. Because of the fear of protest from businessmen, the National Assembly did not pass any laws for French people and for the people who lived in the colonies. लेकिन क्या है बिजनेसमैन के डर की वजह से नेशनल असेंबली ने अभी तक कोई भी बिल पास नहीं किया था, क्योंकि जो बिजनेसमैन की टोटली जो इनकम थी वो डिपेंड करती थी स्लेव ट्रेड पे, इसलिए अभी तक उनके डर की वजह से नेशनल असेंबली ने कोई भी बिल पास नहीं किया था। एंड द जैकोबिन रेजिम इन 1794 अबॉलिश स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज। जैकोबिन के शासन में, जब जैकोबिन की गवर्नमेंट थी 1794 में, उन्होंने फ्रेंच कॉलोनी स्लेवरी को बिल्कुल क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया, बिल्कुल हटा दिया गया था। हाउएवर 10 years लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। लेकिन जैकोबिन गवर्नमेंट के ख़त्म होने के बाद पावर नेपोलियन बोनापार्ट के पास थी, तो उसने क्या है पावर में आने के बाद दोबारा से स्लेवरी सिस्टम को क्या कर दिया, री इंट्रोड्यूस कर दिया। एंड फाइनली द कन्वेंशन मेड लॉ टू फ्री ऑल स्लेव फ्रॉम फ्रेंच कॉलोनीज। आफ्टर द ईयर ऑफ नेपोलियन रीस्टार्टेड स्लेवरी, इट गेव फ्रीडम टू द प्लांटेशन ऑनर टू एनस्लेव अफ्रीकन निग्रो फॉर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। एक्चुअली द स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनी इन 1848 ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रगल। काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद, काफ़ी मूवमेंट्स होने के बाद फ्रेंच कॉलोनी से 1848 में से स्लेवरी सिस्टम को बिल्कुल क्या कर दिया था, अबॉलिश्ड कर दिया गया था। तो इट वॉज द एंडेड ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। एंड नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द रेवोल्यूशन इन एवरीडे लाइफ एंड द रेवोल्यूशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, जो पर्सन की जो लाइफ थी उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ। आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल इन द समर ऑफ 1789, बेस्टाइल वॉज द लार्जेस्ट जेल ऑफ फ्रांस, और उस पर एंग्री क्राउड ने क्या कर दिया 1789 में क्या हमला कर दिया था, और फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑकर्ड ऑन 14 जुलाई 1789। और उसी समय सेंसरशिप का क्या हो गया था, सेंसरशिप का अबोलिशन हो गया था। कैसे हुआ था, क्योंकि सेंसरशिप was an authority under the monarchy system which controlled the press, newspaper, books and published only after the approval by the censor of the king। कि जब सेंसरशिप थी तो किंग से ही सारी परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई भी न्यूज़पेपर में न्यूज़ प्रिंट करने के लिए, कोई भी हमें बुक प्रिंट करने के लिए, कोई न्यूज़ पब्लिश करने के लिए सबसे ज़्यादा परमिशन हमें किंग से लेनी पड़ती थी। तो जैसे ही रेवोल्यूशन आया वैसे ही क्या सेंसरशिप को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया गया। एंड द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट।
17th, the abolition of censorship. That means after declaration of abolition of censorship, it gave freedom of speech and expression to the people, and it gave freedom to press, न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर एक्सेट्रा. कि डिक्लेरेशन राइट ऑफ होने के बाद सभी पर्सन को क्या है, फ्रीडम दी गई, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन. Newspaper, pamphlet, books and printed picture flooded the town of the France, from where they traveled rapidly into countryside and describe and discuss the events and changing state taking place in France. और सेंसरशिप ख़त्म होने के बाद बहुत सारे न्यूज़पेपर प्रिंट किए गए, बहुत सारे न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए, पैम्पलेट्स बनाए गए, बुक्स प्रिंट की गई, और पूरे फ्रांस की जो भी आसपास जो भी कंट्री थी, जो भी टाउन थे, सभी जगह फ्रांस में होने वाली जो भी उनके वहाँ पे इवेंट्स हुए थे, उनको क्या है, सभी कंट्रीज़ में क्या क्या डिस्कस किया गया. और उसके बाद फ्रांस रेवोल्यूशन में के बाद क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या वहाँ पे नए नए रूल्स बने, उन चीज़ के बारे में क्या है, कंट्री साइड में क्या क्या उसके बारे में डिस्कस किया जाता था. एंड नेक्स्ट, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट. आफ्टर द एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर, डायरेक्टरी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन क्लब, the power had gone in the hand of middle class, and middle class formed their own assembly, and they had formed a directory, but due to political instability, the power had gone to Napoleon Bonaparte. पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से जो सारी पावर थी वो नेपोलियन बोनापार्ट ने उस मौके का फ़ायदा उठा के 1804 में फ्रांस की पावर अपने आप ले ली, और वो 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट डिक्लेयर हिमसेल्फ द एम्परर ऑफ फ्रांस. ही conquered many neighboring countries and placed member of his family on the crown. He started a journey of victory of conquered neighboring European countries, and he creates न्यू किंगडम्स व्हेन ही प्लेस मेंबर ऑफ हिज फैमिली. और वहाँ जाके उसने क्या है, पड़ोस की नेबरिंग कंट्री उन पर क्या कर लिया, कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ जो पास की कंट्रीज़ थी वहाँ पे अपने फैमिली मेम्बर को उन्होंने क्या कर दिया, उनको प्लेस कर दिया, उनको अच्छी अच्छी पोस्ट पे क्या कर दिया, उसने सेट कर दिया. उसके बाद नेपोलियन सॉ हिज रोल एज मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप. नेपोलियन अपने आप को क्या मानता था, मॉडर्नाइजर. वो सोचता था कि मैं यूरोप को क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा. he introduced many laws such as the protection of private property and a uniform system of weight and measures provided by the decimal system. इसके लिए उसने बहुत सारे लॉज इम्प्लीमेंट किए, सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट. उन्होंने वेट और मेजरमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ डेसिमल सिस्टम. और यूनिफॉर्म सिस्टम लाने के लिए उसने क्या कर दिया, रूल्स बना दिए कि हर सभी जगह क्या होगा, सेम वेट और मेजरमेंट को ही क्या किया जाता है, फॉलो किया जाएगा. Initially, many welcomed Napoleon as a liberator who would bring freedom for the people, but soon the Napoleonic armies came to be viewed everywhere as an invading force. And the liberator means one who gave freedom and equality to people and brought new changes in the society. Liberator means उदारवादी, जो पर्सन सोसाइटी में नए चेंज लेके आते हैं, फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लिबरेटर. स्टार्टिंग में सभी को लगा था कि नेपोलियन गवर्नमेंट आने से उनको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी, इक्वालिटी मिलेगी. लेकिन जैसे जैसे उसे नए नए रूल और नई नई पॉलिसी बनाई, उसके बाद सून द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी विव्ड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स. और जो उसकी आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा क्या करती थी, उनको आक्रमण करती थी, बहुत ज़्यादा परेशान करती थी. इसलिए जो बड़ा सुन लेकिन जल्दी ही सभी को रियलाइज़ होगा कि नेपोलियन हमारे कोई बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि वो अपने ही बेनिफिट के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है. सो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 एंड द नेपोलियन वाटरलू वॉज डिफीटेड ऑन संडे 18 जून 1815 नियर वाटरलू इन बेल्जियम, पार्ट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड एट द टाइम. और 18 जून 1815 को वाटरलू जगह का नाम, वहाँ पे उसकी क्या है, लड़ाई हुई.
नेपोलियन फोर्सेस वर डिफीटेड बाय द ब्रिटिश, ब्रिटिश के साथ उसकी लड़ाई होने के बाद वो क्या उसमें हार गया। ओके, और इससे फ्रांस की जो पावर थी वो किसके पास चली गई, ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। एंड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेजेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेजेसी मीन्स विरासत। फ्रेंच रेवोल्यूशन ने जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो इंपॉर्टेंट फीचर थे वो उन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन ने प्रोवाइड किया था, लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। This spread were France to the rest of the Europe during the 19th century, where feudal system were abolished. और लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स जो फ्रांस के जो और फ्रांस के अलावा यूरोपियन की 19th सेंचुरी में और यूरोप में भी क्या है, सभी कंट्रीज़ में ये क्या है पहुँचाए गए थे। एंड वहाँ पे भी फ्यूडल सिस्टम को क्या किया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। और वहाँ पे भी लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स को क्या किया था, फॉलो किया जाने लगा था। Later, these ideas were adopted by Indian Revolution struggle, Tipu Sultan and the Raja Ram Mohan Roy also. Tipu and the जो हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो हमारे आइडियाज़ से सच डेमोक्रेटिक एंड लिबर्टी, उसको क्या है इंडिया के स्ट्रगल्स ने, इंडियन रेवोल्यूशन स्ट्रगल ने भी इनको क्या किया, फॉलो किया, जिसकी टीपू सुल्तान है राजा राम मोहन राय। एंड टीपू सुल्तान वॉज ए ग्रेट वॉरियर ऑफ मैसूर and he established a close relationship with the France in India and modernized his army. And Raja Ram Mohan Roy was a social reformer. Okay, student. And now, firstly, we will discuss homework solution. And first question is, who was Maximilien Robespierre? Answer is Maximilien Robespierre was leader of the Jacobins Club. He ruled over France from 1792 to 1793. He followed the policy of several control and punishment. His reign is known as the Reign of Terror. Second question. Name any two women's club of France. First is the Society of Revolutionary and the second is the Republic Women. Which laws were made to improve the status of women in the French society? And the answer is, in the beginning, the revolutionary government introduced law to improve the lives of women. First, schooling was made compulsory for all girls, and their father could no longer force them into marriage against their will. Third, divorce was made legal and could be applied for by both men and women. And point 4, women could now be trained for jobs, could become artists or run small business. Now, student, today your homework is describe the circumstances leading to the outbreak of revolutionary protest in France. Second, which group of French society benefited from the revolution? Which groups were forced to relinquish power? Which section of society would have been disappointed with the outcome of the revolution? Third, and describe the legacy of the French Revolution for the people of the world during the 19th and 20th centuries. And question number 4, draw up a list of democratic rights we enjoy today whose origin could be traced with French Revolution. Explain. How would you explain the rise of Napoleon? Thank you, students.